एंड हेरोइन कोकाइन एज अ गांजा। ये तो इधर का बहुत चलता है। इसको बंद करने के लिए मैंने हर बच्चे को सजेशन देता है, डोंट वेस्ट फॉरगेट टाइम नाउ वंस अगेन दिस सीजन गिव मी हार दिस सम मोर थिंग एज अ मनी गिव आर द योर मदर एंड फादर नाउ टू आर द improve to education and the anyone and the factory is going to are the anyone work improve to now no more than any weakness point is going to are the nisha. कुछ भी चीज़ हो, या ये तो सरकारों का काम बन गया कि पाकिस्तान पे थोप देते हैं कि सारी चीज़ पाकिस्तान ने कर दी, अटैक हो जाए, फलाना मिलिट्री भेज दो, ऑपरेशन कर दो, इतना आसान होता है ये चीज़। अच्छा। हिंदुस्तान के अंदर यह है हिंदुस्तान का दुश्मन। एक बोलता है देश की ये करना वो करना, एक आदमी एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखेगा ना, उसको नीचे गिराने के लिए 10 आदमी देखता है। उससे देख के तो आपको कई लोग गलत भी जज करते होंगे, करते हैं जज कि ये तो ऐसे ही तुरा फिरता होगा, यहाँ पे कोई जैसे गरीब पड़े हैं या कोई ऐसे फिरते हैं, मांगते फिरते हैं, आपको ऐसे जज करते होंगे। फिर करने दो, क्या हुआ, सिंपल इज एन वेरी नाइस नाउ। एक बंदा है APJ अब्दुल कलाम, इंडियन प्रेसिडेंट, हाँ इज इन इंडिया प्रेसिडेंट। लेट्स गो टू द आउटसाइड इज गोइंग टू आर द हवाई चप्पल। जो ये आँख खराब हो गई थी, ये हुआ क्या था? आप जितनी बता सकते हो उतनी ज़रूर बताएं। मैंने उस टाइम में ऑपरेशन हो रहा था कश्मीर में, उस टाइम में हो गया था, बुलेट लग गया था, हो गया था, बस गोली लगी थी यहाँ पे? हाँ, इधर यहाँ से छुपके निकली? छुपके करने के लिए। एक भगत सिंह है पंजाब का, हाँ। भगत सिंह है, 22-23 साल में 24 साल में उसने पासीपंदा में चढ़ गया। आज भी उसको हमने याद कर रहा है। किसके लिए याद करता है? वो कितना सुंदर का देश का सेवा किया था, भारत माता को जय बोला, इसीलिए उसको आज भी राजगुरु सुखदेव एंड आज़ाद चंद्रशेखर भगत सिंह ना याद करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਈ ਰੂਹਾਂ, ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਅ ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਇਟਸ ਬੁੱਕ ਬਾਈ ਇਟਸ ਕਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਅ ਬੁੱਕ ਬਾਈ ਇਟਸ ਕਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਪਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਦੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਅ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਇਟਸ ਕਵਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਪਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। सर क्या नाम है अपना? समरेंद्र सरस्वती। कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से? यस। आप जैसे आप साउथ इंडियन बता रहे थे, आप साउथ इंडियन है? हैदराबाद, साउथ इंडियन, तेलंगाना। तेलंगाना से, अच्छा। कितने साल हो गए सर पंजाब में? फिर आपको बड़ी दूर से आए आप तो? मैं पंजाब से 5-6 साल से घूम रहा हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद का बंदा हूँ मैं। अच्छा। You must be right now take understanding for any one time
give me are the gift of the God this land by birth. Take to the responsibility for anyone youth to improve to are the and the no touching birthday any and the nisha and the heroin cocaine as a ganja. ये तो इधर का बहुत चलता है. इसको बंद करने के लिए मैंने हर बच्चे को सजेशन देता है. डोंट वेस्ट फॉरगेट टाइम नाउ वंस अगेन. This season give me heart the some more thing as the money give are the your mother and father. Now two are the improve to education and the anyone and the factories going to are the anyone work improve to now. No more than any weakness point is going to are the nisha. अच्छा, आपको यहाँ पे 5 साल हो गए. 5 साल. अब मैं जैसे कि बात कर रहा था कि पहरावा देखकर लगता नहीं आप इतने पढ़े लिखे होंगे. ये फिर इंग्लिश कहाँ से सीखी आपने? I am 1964 एज एन MSc केमिस्ट्री किया था. अरे वाह. अच्छा सर, दर्शक ना एक चीज़ जान के हैरान हो जाएंगे जैसे मैं हैरान हो गया था. दर्शकों ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ जंग लग जाए ऑपरेशन कर दो, अटैक कर दो, कहना बहुत आसान कर दिया. सोशल मीडिया का टाइम है, ज़माना चल रहा है. ज़्यादातर यूथ क्या करता है कि अगर कुछ भी चीज़ हो, या ये तो सरकारों का काम बन गया कि पाकिस्तान पे थोप देते हैं कि सारी चीज़ पाकिस्तान ने कर दी. अटैक हो जाए, फलाना मिलिट्री भेज दो, ऑपरेशन कर दो, इतना आसान होता है ये चीज़? Okay, I will call them now once again. Only point is there now once again. हिंदुस्तान के अंदर यह हिंदुस्तान का दुश्मन. अरे वाह. अच्छा. हिंदुस्तान के अंदर यह हिंदुस्तान का दुश्मन. एक बोलता है देश की ये करना वो करना. एक आदमी एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखेगा ना, उसको नीचे गिराने के लिए 10 आदमी देखता है. हाँ, है ना. एक लड़का आगे बढ़ रहा है. एक फॉर एग्जाम्पल आई कॉल देन नाउ वन सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल यू आर एज अ इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मोर देन आर्किटेक्ट. बट आपको थोड़ा पैसे कम ही है, गरीबी है. गरीबी होने के नाते इधर का लोग क्या करते हैं मालूम है, इसको आगे गए तो इसका घर गिर, इसका परिवार डेवलपमेंट हो गया, ये ऐसी रहने बोल के उसको नीचे गिराते. ये हिंदुस्तान, ये खींचते हैं यहाँ पे. ये हिंदुस्तान का रिवाज है. इधर का भी रिवाज है, नॉर्थ इंडियन का इधर का. यही साउथ में देखो, हर लड़का हर आदमी एज एन प्योर टू आर दी एजुकेशन इम्प्रूव. ये चीज़ तो असल में मानने वाली है. ये तो प्रूव भी है कि जो साउथ इंडियंस होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं. उनकी अगर एवरेज पढ़ाई भी देखें ना तो वो डॉक्टर से नीचे तो कोई आई नहीं. एमएससी नीचे से तो कोई वो मिलेगा, कोई. यहाँ पे पंजाबियों में क्या खासियत है कि 12वीं की और बाहर चले गए. इतना ज़्यादा बाहर का क्रेज में. अब ये पीछे ही देख लो, ये पीछे भी सारे जो आइल्स के सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, सारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, बाहर चलते हैं, यहाँ से हट चुके हैं. पर जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या असल में हिंदुस्तान इतना माड़ा था या इसको इतना माड़ा बना दिया गया? All world is going to the 242 countries is there now once again. Anyone going to the NASA and anyone country, London or Australia, anyone going to the country, main doctor is there now once again. आरा हिंदुस्तानी वाला है. किधर भी किसी का, अमेरिका प्रेसिडेंट का एज जो बाइडन का पर्सनल डॉक्टर है, हिंदुस्तान का है, लड़की है, इधर का ही पंजाब का लड़की है, परमजीत कौर. हाँ, गूगल का CEO भी इंडियन है. गूगल का CEO, नासा में जो कितनी बड़ी कंपनी है उनमें सभी में जो है इंडियन है. यानी कि ये तो प्रूव्ड है कि इंडियन के पास दिमाग तो बहुत होता है. हमारा हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंट आके 75 ईयर्स है, अब हैज़ एन अगस्त 15th. 75 ईयर्स क्रॉस. हाँ बिल्कुल. 75 ईयर्स में केवल 7 साल छोड़ के बाकी का 60 से 8 years is in government to always to are the anyone another government and the to are the and the Congress government. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੰਘੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, वेस्ट करता. गल देखो कितनी बड़ी है. सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने ये आँख का बताया था किस्सा, ये दर्शकों को ज़रूर बताएं. ये क्या चीज़ हुई थी, ये कैसे हुई है? बाय बर्थ था आपके? नो बाय बर्थ नो. मेरा हो गया 29 ईयर्स हो गया. 29 साल. 29 साल. ये कैसे हुआ था? ये वो उधर हो गया था. मैं काम करते समय में ऑपरेशन में गया था. उस टाइम में उग्रवादी का अटैक में हो गया था.
अच्छा, आप ग्रेजुएट, आप रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड किस चीज़ से हुए थे? किस मतलब कि कौन से क्षेत्र में थे आप? ये चीज़ आप मिलिट्री में थे, आप मिलिट्री में थे? Yes. ये जो सारी मिलिट्री में हुई आपकी? हाँ वो भी पहला हो गया था, मैं रिटायरमेंट हो गया था, अभी आराम से जी रहा है, बाल बच्चा 3 लड़कियाँ है, तीनों डॉक्टर हैं। अरे वाह। पर आपने अपनी लुक को मतलब कि आपकी अगर ऊपरी देखें ना, हम दिखावा देखें, जो पहरावा देख लेते हैं, है ना, उससे देख के तो आपको कई लोग गलत भी जज करते होंगे, करते हैं जज कि ये तो ऐसे ही तुरा फिरता होगा, यहाँ पे कोई जैसे गरीब पड़े हैं या कोई ऐसे फिरते हैं, मांगते फिरते हैं, आपको ऐसे जज करते होंगे फिर? करने दो, क्या हुआ, सिंपल इज़ वेरी नाइस नाउ। एक बंदा है APJ अब्दुल कलाम, इंडियन प्रेसिडेंट, हाँ, इज इन इंडिया प्रेसिडेंट। लेट्स गो टू द आउटसाइड, इज गोइंग टू आर द हवाई चप्पल। वाई? हाँ, वो कभी भी जाते थे चप्पल होती थी उनके पास। हाँ, वाई? सिंपल रीजन, यू आर द गिफ्ट ऑफ द गॉड, द इंडियन का भारत माता। आज हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसका माता जी तो 100 साल के अंदर है, 100 साल के आसपास है, वो कैसी है? वो दे सकते हैं तो बड़ा बिल्डिंग नहीं दे सकते। उसका भाई लोग रेशन शॉप चला रहा है, वो कमा के दिया तो इंडिया का प्रधानमंत्री है, वो कमा के दिया तो उसका भाई, 2 भाई का, उसका माँ बाप का तो पैसा नहीं दे सकते। कष्ट करो, मेहनत करो, मेहनत का फल बहुत मीठा रहता है, डबल धंधा का फल बहुत अच्छा है। इतना मोटा रहता है देखने के, उसके पीछे एक सांप रहता है पुलिस वाला का, उसको बचा के रख दो, मेहनत का फल बहुत मीठा रहता है। मोर देन एबी डेंजरस टू आर दी डबल धंधा। इजन मेहनत करो, मेहनत करके तुम्हारा, आपको भगवान ने 2 हाथ पैर दिया, तुम्हारा जीवन कितना दिन रहता है उतना दिन मेहनत करो, मेहनत करके कमा लो, उसी में तुमको आनंद रहेगा, तुम्हारा दिल भी मानेगा, ये मैंने कमा के खा रहा है, ये मेरी मेहनत की कमाई, मेहनत का कमाया है, मेरा पसीना का कमाया है, ये कहाँ भी से नहीं है, लूट के नहीं आया, मेरा पसीना का कमाई मैं कर रहा है, इसीलिए इसी में संतुष्ट है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, जितनी आप बता सकते हैं प्लीज़ उतनी बताएं, ज़रूर बताएं। जो ये आँख ख़राब हो गई थी, ये हुआ क्या था? आप जितनी बता सकते हैं उतनी ज़रूर बताएं। मैंने उस टाइम में ऑपरेशन हो रहा था कश्मीर में, उस टाइम में हो गया था, बुलेट लग गया था, हो गया था, बस गोली लगी थी यहाँ पे? हाँ, इधर यहाँ से छू के निकली? छुकरे करने के लिए साइड से। फिर हमने भगवान का कृपा से, हमारा माता जी का कृपा से, हमारा माँ बाप का आशीर्वाद से, भगवान का आशीर्वाद से हमने आज स्वस्थ हो गया। एक आंख है तो भी मैं गाड़ी गीड़ी चलाते, मेरा गाड़ी भी है, गाड़ी गीड़ी चलाते, सब चलाते। अच्छा। मगर मैंने देश की सेवा करने वाला यूथ को बोलते हैं, नो मोर देन एनीवन चीटिंग वर्ड्स, नाउ इज़ द कमिंग शोनार्दी। मेहनत करो, मेहनत का फल बहुत मीठा रहता। इधर काम नहीं मिला है तो आपका हाइट अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, जाओ मिलिट्री में जाओ, देश की सेवा करो, सेवा करके देश की सेवा। एक बार तुम देश की सेवा किया था ना, हाँ, तुम्हारा गांव तुमको ऊपर उठा के याद रखिएगा 100 साल तक। अच्छा, एक भगत सिंह है पंजाब का, भगत सिंह है, 22-23 साल में, 24 साल में उसने पासीपंदा में चढ़ गया। आज भी उसको हमने याद कर रहा है। किसके लिए याद करता है? वो कितना सुंदर का देश का सेवा किया था, भारत माता को जय बोला, इसीलिए उसको आज भी राजगुरु सुखदेव एंड आज़ाद चंद्रशेखर, भगत सिंह ना याद करते हैं। एक बंदा है आंध्रा में, एक मुख्यमंत्री है टंगुटूरी प्रकाशम। अच्छा। ही जन मरते दम तक उसका गाड़ी का डीजल डालने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता था, देखने के लिए 2 स्टेट का, तमिलनाडु आंध्रा का इकट्ठा रहता था उस टाइम में। उसका मुख्यमंत्री है, फिर भी उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास तेल डालने के। अच्छा। ये उसका गाड़ी में डीजल डालने का पैसा नहीं, तो किसी बंक के पास जाता था, 1 तारीख मेरा सैलरी पड़ेगा, मैं दिएगा बोल के मुख्यमंत्री जाके वहाँ मांगता था रिक्वेस्ट का। ऐसा वाला एक कामराज नडियारा है। और पंजाब का, हिमाचल का नंगल डैम ने बना दिया। वो क्या पढ़ाई किया? कुछ नहीं, वो तो अंगूठी का छापने वाला है। अच्छा, इतना हौसला कैसे आता है आप पे, इतनी जिंदा दिली? असल में बल्कि मैं जानना ये चाहता हूँ कि गोली छू के निकल गई, आँख से देख पाते हैं आप? ये नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। अरे अच्छा, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी आँखें। अच्छा, तो मतलब कि आप बिल्कुल देख नहीं सकते, अब ये एक आँख है आपके पास। तो बहुत तेज तरार है। तो इतना जिंदा दिली कैसे आई? अगर यहाँ पे तो मेरे जैसे, अगर मेरे अगर चोट भी लग जाए ना, मैं यहाँ पे ढिंडोरा पीट दूंगा कि मेरे चोट लग गई यार, मेरे तो चाहे थोड़ी सी चोट लगी हो, पर आपके गोली लगी, छू कर निकल गई, आँख बिल्कुल बंद हो गई, ख़त्म हो गई पूरी। इतनी जिंदा दिली कहाँ से आई?
ये तो माँ बाप ने दिया आशीर्वाद, और साथी वाला, शादी करने के बाद साथी वाला था ना पत्नी, वो हिम्मत है। इज़ गिव आर द गिफ्ट ऑफ द गॉड। भाई मैं ज़िंदगी मैंने सैक्रिफाइस किया तो भी मेरे देश के लिए सैक्रिफाइस किया था। हम मर गए तो भी हमारे पत्नी हंसते हंसते दहन करिएगा। ये मैं सवाल मेरा यही हुआ कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी आँख की दे दी मिलिट्री के लिए, देश के लिए, पर लोग आपको फिर भी वो वैसा जज कर रहे हैं कि ये तो वैसे ही गरीब फिर रहा है। किसी को बताने की कोशिश नहीं की करते कभी कि मैंने तो ये देश के लिए इतनी बड़ी सेवा की हुई है। मैंने बोलता हमारे बारे में तो हमको अंग्रेजी आता है बोल के हमने इधर बोलता नहीं किसी की, कितना पढ़े लिखे है, 4th क्लास बोलते, फिर मेरा बताते नहीं। ये मिलिट्री वाला ना खासियत ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਅ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਇਟਸ ਕਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੀ ਢਾਂਚਾ देख के जज नहीं करना चाहिए कदे। पर मतलब कि आप बताते फिर ऐसे क्यों है कि मैं तो 4th पढ़ा हूँ पर आप तो इतनी अच्छी। क्या होते हैं मालूम है, हमने देखने में एक बाबा का, साईं बाबा का ट्रस्ट से जैन, साईं बाबा मंदिर से जैन हो गया। जैन होने के बाद में हमने इतना दाढ़ी रखे, ये तो कान को कुंडल रखे। हाँ, हम देखने में तो ये कान के है, ये तो इतना पढ़े लिखे। अब आप खुश हैं? खुश हैं? सैटिस्फाइड। ले पीपल को सेवा करने में एंजॉय योर सेल्फ माई लाइफ। क्या बात। मैंने किसी की सजेशन देता है, बेटा तुम इतना पढ़ रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा माँ बाप का मेहनत है, तुम माँ बाप ने 10 रुपया दे के तुमको ये कॉलेज तक भेजते हैं, तो एक सिगरेट पी के उसको ख़त्म करना मत, तो कल के लिए 4 रुपये बचा के रख दो। कल का दिन बहुत बड़ा है। एक दिन तुम लॉस कर दिया ना, तो एक दिन तुम्हारा लॉस हो जाएगा ना, एक दिन तुम्हारा बाय डेथ का पेनल्टी भी नज़दीक आ रहा है। इसीलिए एक घंटा 1 मिनट देश के लिए और तुम्हारा माँ बाप के लिए इस आगे बढ़ने के लिए यूज़ करो। 3 गुना रहते हैं बचपन, ज़िंदगी। बचपन खेल में गया, जवानी नींद में गया, बुढ़ापे में कष्ट पे आ रहा है। भगवान, इसीलिए वायु गुरु भी एक संत अर्जुन सिंह सेव ने, 5th गुरु ने एक बात बोला था, बट एवरीथिंग इज डन, ही डजंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ईयर इन द सिचुएशन। देखो दुनिया कितना खूबसूरत है, इस दुनिया को देख के, खूबसूरत देख के तुम मोहित होना मत, उसके साथ में तुम्हारा अंदर का दिल देख लो, भगवान का दिल देखो, वो 1000 वर्ष खूबसूरत है। फिर उसके साथ भी तेरा माँ का सेवा करना भी भूलना मत। आज का दिन में ऐसा बुढ़ापा में औरत लोग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ना बरसात में, ना गर्मी में, ना मच्छर कीचड़ काट रहा है, उसको खाना टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। उसी के लिए क्यों बनाते हैं? ये साउथ में नहीं रहते, ये नॉर्थ में रहते हैं। यहाँ बीमारी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, निशा ज़्यादा है। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा कि आपने इतनी बड़ी सेवा दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मिलिट्री वालों ने आपसे, जो आपके ऑपरेशन वाले थे, जो आपके स्पेशल फोर्सेस वाले थे, उन्होंने दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की? आपसे बातचीत करते हैं? मेरे को तो श्योर गिव मी हार्डली हेल्प टू आर दी एनी वन पर्सन इन द मिलिट्री। हिंदुस्तान का पीपल ऑलवेज, मेरा हैदराबाद का मुख्यमंत्री है ना, वो भी हमको हेल्प करता है हर साल। हम पेंशन लगी हुई आती है क्या यार? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਫੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਗਰਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੀ, ਐਡਾ ਕੁ ਜਿਗਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਓਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ, ਅੱਖ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਐਡਾ ਬਲਿਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਤਗੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਰੈਕਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਖ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਗਏ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਵਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਅ ਬੁੱਕ ਬਾਈ ਇਟਸ ਕਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਚੰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।